सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑनरेबल सेक्रेटरी भावेश जी टेलर हैं। आज हम इनकी अध्यक्षता में आज का प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त चाहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर अपने व्यापार की, अपनी प्रगति के साथ देश की प्रगति भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है। भारत सरकार हमारे लिए कई तरह से स्कीम्स लाती हैं, पॉलिसीज लाती हैं। इस तरीके से कई देशों के साथ फ्री ट्रेड भी करती है, परंतु अपन उन चीज़ों को कई बार समझ नहीं पाते हैं। पता होता है कि सरकार ने एग्रीमेंट किया है, पर उसको समझाने के लिए हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्यापारियों को, कपड़ा उद्योग को, पूरे इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को किस तरीके से सहयोग करें। उसके अंतर्गत आज हम हमारे बीच दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो अभी यूएई के साथ एग्रीमेंट अपना हुआ है। वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ के सिस्टम, वहाँ का फाइनेंस सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से होगा, क्योंकि अपन यहाँ बैठ के वो चीज़ को पता नहीं कर सकते हैं, पर हमारे बीच ऐसे एक्सपर्ट भी आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आदरणीय श्री भावेश जी टेलर से करूँगा कि वो अपना स्वागत प्रवचन दें। ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આજના માહિતીપ્રદ કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા સીએ જસુભાઈ શાહ, માનદ ખજાનચી શ્રી ભાવેશભાઈ ગઢિયા, આજના કાર્યક્રમના કન્વીનર અને ખૂબ જ એક્ટિવ એવા અમારા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી ડૉક્ટર અજયભાઈ ભટ્ટાચાર્યજી, એમના સુપુત્ર સીએ તુહિન ભટ્ટાચાર્યજી, ચેમ્બરની કોન્સ્યુલેટ લાઇસનિંગ અને ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ડેલિગેશન કમિટીના ચેરમેન શ્રી હર્ષલભાઈ ભગત તથા અન્ય કમિટી સભ્યો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો અને આજના વિષયને સમજવા, જાણવા, માણવા આવેલા સૌ શ્રોતાગણો, હું ભાવેશ ટેલર ચેમ્બરના સેક્રેટરી તરીકે ચેમ્બર વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, થોડી હું તમને ચેમ્બર વિશે જાણકારી આપવા માંગુ છું કે આજે ઘણા મિત્રો મને દેખાઈ રહ્યા છે જેઓ ચેમ્બરના મેમ્બર્સ નથી. ચેમ્બર એ 1940માં સ્થપાયેલી સંસ્થા છે. આજે ચેમ્બરને 82 યર્સ થયા. આપણા આઝાદીને 75 વર્ષ થયા, પણ ચેમ્બરને 82 વર્ષ થયા છે. એ એક બહુ મોટી સિદ્ધિ છે. અને ચેમ્બર વર્ષોથી ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરે છે, જેવા કે ઘણા બધા એક્ઝિબિશન્સ, ઘણા બધા કોન્ક્લેવ્સ, સેમિનાર્સ. દર ઓલ્ટરનેટ ડે અજયજી એક પછી એક પ્રોગ્રામ હોય છે. આજે તમે જે સેમિનાર કરી રહ્યા છો એ પણ ખૂબ જ જરૂરી સેમિનાર છે આજના સમય માટે. તો આવા બધા ઘણા બધા પ્રોગ્રામ થાય છે. ચેમ્બર આવો સાહેબ આગળ. ચેમ્બરના ઘણા બધા એવા પણ ફોરમ છે કે જેમાં ચેમ્બરના મેમ્બરો માટે સ્પેશિયલી એક પોતાના બિઝનેસના ગ્રોથ માટેના, પ્રેઝન્ટેશન માટેના પણ પ્રોગ્રામો કરવામાં આવે છે. ઘણા બધા પ્રોગ્રામો એવા છે જે એક્સક્લુઝિવ ચેમ્બરના મેમ્બરો માટે કરવામાં આવે છે. ચેમ્બરના મેમ્બરોને ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી પણ ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે. તો મારું સૌને વિનંતી છે કે જેઓ ચેમ્બરના મેમ્બર નથી તેઓ ખાસ મેમ્બર બને, જેથી કરીને આવા બધા કોન્ક્લેવ્સ અને એવા એક્સક્લુઝિવ અમુક જે પ્રોગ્રામ હોય છે તેમાં પણ તમે ભાગ લઈ શકો. મિત્રો, આજે આપણે કંપની ફોર્મેશન ઇન દુબઈ વિષય ઉપર માહિતી મેળવવા માટે ભેગા થયા છે. આ વિષયના ટાઇટલથી આપ સૌને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે. ઉદ્યોગ જગતમાં નવા નવા સાહસિકો પાપા પગલી માંડી રહ્યા છે. રોજ નવી વાતો, રોજ નવું ઇનોવેશન, રોજ નવા આઈડિયાના જોરે તેઓ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડગ માંડી રહ્યા છે. તેઓ પોતાના શિક્ષણ અને અનુભવથી પોતાનો બિઝનેસ સ્થાપવા તત્પર છે, પરંતુ તેમની તત્પરતા સાથે જો યોગ્ય માર્ગદર્શન
અને દિશા સૂચનો મળતા રહે તો નવા સાહસકો માટે એ ખૂબ જ એક જરૂરી કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. અને આ વાત વિદેશમાં ધંધો સ્થાપવાની હોય ત્યારે આ બાબતે યોગ્ય તકેદારી રાખવી એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણી સાથે આપણી વચ્ચે શ્રી જસુભાઈ જેઓ આપણને આ બધી જ માહિતીઓથી અવગત કરશે. તેમના સંબોધન બાદ આપને અનુભવથી મૂંઝવણોનો ઉકેલ આપ મેળવી શકો છો. તો ચાલો કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને ફરી એક વખત આપ સૌને આવકારું છું અને આગળ કાર્યક્રમ માટે દેવકૃષ્ણજીને વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. हेलो के बाद में चालू होता है बड़ा पेशेंस रखते हैं. खूब खूब धन्यवाद भावेश भाई, आपने बहुत अच्छी अपील की कि हमारे चैम्बर में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उसका लाभ लेने के लिए चैम्बर की सदस्यता अपने हित में है, ताकि हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के उद्योगों के साथ आगे बढ़े. आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेक्रेटरी साहब भावेश भाई टेलर जी से कि वो हमारे भावेश जसुख भाई शाह का स्वागत करें. हमारे बीच हमारे मेहमान जसुख भाई शाह हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें फ्लावर एंड बुके, और साथ में हमारे ट्रेजरर श्री भावेश जी. अच्छा, संजोग से दोनों का नाम ही भावेश जी है. करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं. जो आज का हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में कन्वीनर और हमारे पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर अजय भट्टाचार्य जी प्रकाश डालेंगे, ताकि इस कंपनी फॉर्मेशन इन दुबई के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में एक बताएंगे कि किस तरीके से इसमें अपन विधि के आधार पे आगे चलेंगे. श्री अजय भट्टाचार्य जी. नमस्कार मित्रों. जशुक, वेलकम टू सूरत. यू आर फ्रॉम सूरत. वैसे तो आप सूरत के ही हैं, लेकिन दुबई से यहाँ पे आए इसलिए आपका स्वागत करना ज़रूरी है हमारे लिए भी. मुझे बहुत खुशी है कि भावेश जी आज हमारे बीच में हैं. भावेश टेलर की बात कर रहा हूँ और भावेश घड़िया की भी बात कर रहा हूँ. दोनों हैं हमारे मित्र. कारण ये है, मैं भी चैम्बर से करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और ये जिस समय हमारी प्रेसिडेंटशिप थी उस समय ये लोग जस्ट अपना करियर यहाँ पे शुरू कर रहे थे. दीपक सेठवाला भी यहाँ बैठे हैं, हमारे मित्र ही हैं, और हम लोगों ने इनको देखा है कि इनका ग्रोथ कैसे हुआ है. We are very proud of you, Bhavesh, both of you. Very, very proud of you. This is the future of chamber. ये chamber का future है. हम लोगों की जवाबदारी ये बन जाती है एज पास्ट प्रेसिडेंट कि हम सही बात करें, मार्गदर्शन जो भी दें वो सही दें, और गलत हो तो बताएं कि ये गलत है, इसको ठीक किया जाए. हर्षल, वेलकम टू यू ऑल्सो. देवकिशन जी, आप तो मेरे पुराने मित्र हैं भाई, नमस्कार. और मेरा बेटा तुहिन, स्पेशल वेलकम टू यू माय डियर.
आज ये प्रोग्राम जो किया, जो सेमिनार रखा गया, इसके पीछे जो सोच है वो मैं आपको 2 मिनट में बता दूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, आइदर यू चेंज विथ टाइम्स और टाइम विल चेंज यू। या तो आप समय के साथ बदल जाएं, ये समय आपको बदल डालेगा। मैं अभी खड़ा होकर के जसूब के फादर भी यहाँ पे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि मैं सूरत में आने वाला जो 5 से 10 साल है, वो जो 80s में सूरत का एक पीरियड था जब लोग 1 के 3 करते थे, 1 के 2 नहीं 1 के 3, वो पीरियड सूरत का वापस आ रहा है, ऐसा मैं 100% मानता हूँ। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। 80s में जिस समय सूरत की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई थी, उस समय पेड़ियाँ चलती थी। कितनी लोग मेरे मित्र, जो लोग आज जिसको कहते हैं ना पुराना जनरेशन, स्कूटर पे आए थे सूरत में और आज उनकी 3-4 मिलें हैं, 2500 दुकानें हैं, एक्सपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन आ जा रहा था सूरत की इंडस्ट्री के अंदर। जो नया जनरेशन आया, जैसे मेरा बेटा है, जैसे जसुक है, जैसे भावेश, दोनों हैं, ये इनको मैं नया जनरेशन मानता हूँ। उस जनरेशन और इस जनरेशन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि काम करने के तरीके बदल गए, काम करने की सोच बदल गई। टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा समझ, ज़्यादा ध्यान। कैसे हम बैठ करके अपने घर से ही ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं तो कभी बच्चों को देखता हूँ तो आश्चर्य लगता है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है, तो किसी को भेज देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन आ जाएगा ना भैया। बर्थडे है, अच्छा एक काम करते हैं, गिफ्ट भेज देते हैं उसको ऑनलाइन। अब ये जो जनरेशन का चेंज आया है, क्या इसको सूरत एक्चुअल बिजनेस टर्म्स में कन्वर्ट कर पाएगा? अगर सूरत को इसको कन्वर्ट करना है तो सूरत को सूरत से बाहर, देश में नहीं विदेश में भी देखना पड़ेगा। और एक बहुत नेचुरल इंटीग्रेशन जो मैं देख रहा हूं आने वाले समय में, वो है सूरत का इंटीग्रेशन फ्रॉम फैब्रिक टू गारमेंट। ये 100% होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मुझे खुशी और चिंता एक बात की है। खुशी इस बात की है कि इंटीग्रेशन बहुत नेचुरल और ये होगा। चिंता इस बात की है कि क्या वो इंटीग्रेशन बिल्कुल सही तरीके से होगा, सही मायने में होगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि गारमेंटिंग और वीविंग या फॉर दैट मैटर प्रोसेसिंग सेम नहीं है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है इन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोसेसिंग में, गारमेंटिंग में आज भी एक स्टिचिंग मशीन के पीछे 1.5 आदमी लगता है। जिस तरह की स्किल्स की उसमें ज़रूरत है, जिस तरह की सोच की उसमें ज़रूरत है, उसको सूरत इंडस्ट्री किस तरह से अपनाएगा, किस तरह से उस बारे में अपने आप को इंटीग्रेट करेगा और सोचेगा। मुझे पूरा भरोसा है इस नए जनरेशन पर। मैं जब भी आप लोगों को देखता हूँ, यंग जनरेशन को देखता हूँ, तो मेरा विश्वास इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपकी सोच बहुत आगे है। हमारी कोशिश ये रहना चाहिए एक बड़े के नाते कि आप लोगों की हैंड होल्डिंग करें ठीक से। जितना हमने सीखा है, जो हमने सोचा है, जो हमने समझा है, उसमें से जितना आपको हम दे सकें, और फिर आपको ये छूट दें, आपको ये लिबर्टी दें, आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें कि आप उसको आगे कैसे लेके जा सकते हो। ये जो दुबई में कंपनी फॉर्मेशन की जो बात आई है, ये उसी का एक पहल है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं इंडस्ट्री का ग्रोथ देख रहा हूं, मैं 100% ये मानता हूं कि आप जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट प्रोसेसिंग, फैब्रिक प्रोसेसिंग, जो भी आप कर रहे हैं, उस पर अगर आप पूरा फोकस रखें और ऐसे रिसोर्सेज जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, जिसको कि हम हायर कर सकते हैं, हमारी एनर्जीज अगर मान लीजिए उसी में चली जाएंगी, जैसे हमारी पीढ़ी ने किया था, मान लीजिए
हम जाते थे DIC के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए, हम जाते थे इनकम टैक्स के अंदर, हम जाते थे सेल्स टैक्स के अंदर, हम खुद जाते थे। अब ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑनलाइन नज़र आती हैं। ज़्यादातर आपको कंसल्टेंट्स नज़र आते हैं जो आपको कहते हैं कि चलिए आप कंपनी बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, हम बताते हैं आपको। आपको टैक्स के इश्यूज़ हैं, आप टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए, हम आपको बताते हैं। हमारी कोशिश ये है इस समय पे, जो जशुक भाई को हमने इसलिए बुलाया है, कि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं ना बाउंड्री पे खड़े हैं, करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, जाना चाहते हैं एक्सपोर्ट में, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ शुरुआत करें, किससे कहें, किसके पास जाएं। मैं चाहूँगा कि जशुक भाई जब आप यहाँ से आज निकलें इस प्रोग्राम को पूरा करके, तो यहाँ पे किसी भी एक जो भी यहाँ पे बैठे हैं हमारे मित्र, इनमें से किसी में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए इसके बाद में कि अगर मुझे दुबई में जाकर के बिजनेस करना है, चाहे मुझे दुकान खोलनी है, चाहे मुझे वेयरहाउस करना है, चाहे मुझे ऑफिस करना है, मुझे उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ेगी, मुझे उसके लिए किस तरह के प्रोविजंस वहाँ पे हैं, किस तरह के लॉ वहाँ के हैं, क्या क्या मुझे वहाँ पे जाने के पहले तैयारी यहाँ से करना पड़ेगी, इसके लिए आप गाइडलाइंस दीजिएगा। ये लोग बहुत समझदार हैं यशुक भाई, मैं आपको बता दूँ। हाँ, ये थोड़े दिन बाद आपको सिखाएंगे कि नहीं साहब आपने तो ये कहा, लेकिन कैसे करना है हम आपको बताते हैं। ये सूरत की तासीर है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जब शुरुआत करने जा रहे हैं उस समय पे आप इनको ज़रूर गाइडलाइंस करें। आने वाला टाइम जो है मित्रों, मैं बिल्कुल पूरी आपको इससे कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा CMI के साथ में भी जुड़ा हूँ और अभी रिसेंटली हमने 2 एग्जीबिशंस किए बॉम्बे में, और जो मैंने वहाँ पे देखा है और जो समझा है मैं आपको बता दूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि 80s का पीरियड सूरत में वापस आ रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि 2-3 साल बाद कभी हम लोग फिर ऐसे कभी मिलेंगे और मैं फिर वो बात कहेंगे और आप सब कहेंगे हाँ आपने सही कहा था। इतना बड़ा चेंज सूरत में आने वाला है। वेदर आप उसके भाग हैं कि नहीं, वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ दैट और नॉट, ये आपको तय करना है। हम कोशिश ये करेंगे कि आज की बात यहाँ ख़त्म ना हो जाए। जितना बड़ा ग्रुप यहाँ पे आज आया है, इन सब की हैंड होल्डिंग की जवाबदारी तो ही मैं आपको दूंगा। यू मस्ट मेक श्योर दैट एवरी पॉसिबल सपोर्ट, एवरी पॉसिबल सर्विसेज। एक आखिरी बात जशुक, आपको जाने से पहले 2 तरह के सपोर्ट लाइन्स होते हैं। एक होता है जो प्रोएक्टिव होता है और एक होता है जो रिएक्टिव होता है। सूरत को इस समय प्रोएक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत है, रिएक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनका हैंड होल्डिंग करते हैं तो प्लीज़ इनको पहले से गाइडलाइंस दीजिए जिससे कहीं गलती ना करें। सक्सेस तब आएगा जब, अगर मान लीजिए सूरत के अंदर 10 सक्सेस स्टोरीज आपने खड़ी कर दी ना, यहाँ का वाटर जेट देख लीजिए, एयर जेट देख लीजिए, एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए, शुरुआत किसी ने की थी 5-10 मशीन से, आज लाखों में है। वही होने वाला है सूरत के यहाँ से एक्सपोर्ट का। सवाल ही उठता है कि आप सही हैंड होल्डिंग करते हैं कि नहीं, जवाबदारी आपकी ज़्यादा बड़ी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज का ये सेमिनार आप सबके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोग लेके जाएंगे, और तुहिन आपको फिर से जवाबदारी देता हूँ मैं, जिसको जिस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत हो उसको पूरी तरह से मिले यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। अजय जी ने इतना पॉजिटिव आपके सामने रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने जने तैयार हैं विदेशों में जाके अपनी कंपनी खोलने के लिए, तो हम भी तो देखें कि भाई कितनी इच्छा शक्ति अपने में भी है। क्योंकि वक्त बदलता है तो हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, वरना वक्त हमें बदल देगा। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हम हमारे चेयरमैन कॉन्सुलेट लाइसेंसिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेशन कमेटी के जो हैं मिस्टर हर्षल भगत जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे बीच में जो निष्णांत हर्षल भाई शाह जी हैं, उनकी जो भी खूबियां हैं उन पे प्रकाश डालें। Thank you, Dev Krishan ji, Honorable Secretary, Treasurer, and distinguished guest. दुबई वैसे हिंदी में, क्योंकि बाकी सब स्पीकर हिंदी में बोल रहे तो मैं भी हिंदी में ही बोलता हूँ आज के लिए, अच्छा रहेगा। दुबई अब सूरत और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ के लिए नया नहीं है। हमने ऑलरेडी
लास्ट ईयर एक एग्जीबिशन कर चुके हैं। और दुबई की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्समास जो टेक्सटाइल मर्चेंट है, जिसके साथ हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और टेक्सटाइल का आदान प्रदान भी शुरू हो गया है और काफ़ी बिजनेस सूरत से आया है और अभी विवनीट में उनका बड़ा डेलीगेशन भी सूरत आकर गया हुआ है। तो दुबई की शुरुआत तो हमने लास्ट ईयर हो ही गई थी। अब सही बात है कि हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे बीच में आज जसुख भाई शाह है, उनका मैं एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको। वैसे ये मल्टी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है और CA, CS, LLB और एक्टोरियल साइंस काफ़ी डिग्री है। उन्होंने CA और CS में नेशनल लेवल का रैंक लिया हुआ और CA में खास करके उन्होंने 9th रैंक उनको मिला हुआ है। सूरत के ही है, हमारे बीच के ही है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप सूरत है। सूरत में उन्होंने कैरियर अपना डायमंड कंपनी शुरू किया। उसके बाद उनको ओवरसीज ऑपरेशन देखने का चांस मिला और फाइनेंस में उन्होंने दुबई में कंसल्टिंग फील्ड में काम किया और आज खुद की कंपनी करके दुबई में उनके 400 क्लाइंट है जो रेगुलर काम करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कंपनी उनकी जो है एस पैटर्न्स कंसल्टिंग, और ये बहुत ही अच्छी तरह दुबई में एस्टेब्लिश है और हर तरह की जानकारी हमें देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं जयसुख भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे प्रोग्राम करें। गुड इवनिंग। नवरात्रि में जाना लगता है सबको, अभी तो शोर है सब, अभी जाओ सर। गुड इवनिंग। आज लास्ट डे नवरात्रि का, अभी तो सबको यहाँ से एक्टिव होकर जाना है। आई स्टार्ट थैंकिंग सबसे पहले साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए। वेरी हम्बल्ड, मतलब जो मुझे यहाँ पे वेलकम मिला, मैं शायद इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आई एम रियली टच। थैंकिंग अजय जी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारा डिस्कशन जब हुआ तब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे उन्होंने बताया कि कितनी ज़रूरत है जेन्युइनली यहाँ के ट्रेडर्स को, जहाँ पर उनको एक लिवरेज दे, एक अपॉर्चुनिटी दे जिससे वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो हो सकता है। तो थैंक यू सो मच अगेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, जो इतने एग्रेसिवली, जो पास्ट बैरर्स, ऑफिस बैरर्स हैं, जो अभी बैरर्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए एकदम जुट कर मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ एवरीवन तालियां साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो दुबई, कितने लोग दुबई से वाकिफ़ है या दुबई ट्रैवल करते हैं या जा चुके हैं? वाह, इंटरेस्टिंग। मुझे बताइए, सबको मालूम है कि दुबई वर्ल्ड की टॉप सिटी में से एक है। दुबई के पास सब खुद के रिसोर्सेज नहीं है, शायद काफ़ी लोगों को पता होगा, उनके खुद के रिसोर्सेज बहुत कम है और ना ही कोई ऑयल का बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ, तो उनके रिसोर्सेज नहीं है। तो दुबई टॉप में क्यों है? क्या क्या डिफरेंट है दुबई के अंदर? कौन बता सकता है मुझे? कुछ बुर्ज खलीफा, गुड, बट क्या, क्यों बुर्ज खलीफा दुबई में क्यों है? टूरिज्म कैसे डेवलप हुआ? मतलब उनका खुद का तो कुछ है नहीं। प्लीज, हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, टैक्स फ्री, वेरी गुड पॉइंट। पर टैक्स फ्री होने के बावजूद टैक्स नहीं है यहाँ। तो कैसे पॉइंट है कि मैं तो पैसा भी नहीं ले रहा हूँ फिर भी नंबर 1 बना रहा हूँ सिटी को? कैसे पॉसिबल होता है ये? बहुत बढ़िया पॉइंट, विजन। वहाँ के राजा शेख मोहम्मद का विजन, और क्या क्या विजन, मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, उनका एक स्टेटमेंट, नंबर 1 से नीचे सेटल ही नहीं होना है, सिंगल एक ही विजन, सब कुछ करना है टॉप नंबर 1। सिर्फ फर्क विजन सोच का है बस। और वहाँ देखिए दुबई कहाँ पहुँच गया सर, और अभी तो शुरुआत है दुबई के हिसाब से। दुबई में उनको हर चीज़ टॉप क्लास A1 लाकर खड़ी कर देंगे, और सिर्फ विजन। पैसा उनको लगता है अगर मैं विजन खड़ा करूंगा पैसा आएगा, लोग आएंगे, मुझ पर भरोसा करेंगे, लेकिन वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्ज खलीफा ले लीजिए, एमिरेट्स एयरलाइन ले लीजिए, सब 150 से ऊपर गिनीज रिकॉर्ड सिर्फ दुबई सिटी के नाम पे है, और छोटी बात नहीं है ये। तो दुबई अपॉर्चुनिटीज का सागर है। आप जिस बिजनेस में
आप सोच रहे हैं वहाँ पे हर एक अपॉर्चुनिटी आपको दुबई में अवेलेबल है और टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो क्या चीज़ें स्टैंड आउट करती है, क्या चीज़ें दुबई में डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस सभी करते हैं, मतलब जहाँ जितना बिजनेस अपने इंडियन करते हैं वहाँ नहीं करते, लेकिन इमेजिन करिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को सुना है कि बिजनेस करने में ये डिफिकल्टी आ गई, या गवर्नमेंट से ये इशू हो गए, या यहाँ पे ये मामला अटक जाता है, वो अटक जाता है। दुबई में आइए सर, इतने रॉबस्ट सिस्टम्स है कि आप उस सिस्टम से बाहर ब्रिज करने का सोच भी नहीं सकते, और इतना ईजा होता जाता है धंधा करना, बिजनेस करना, कि आपको एक बार बिजनेस करने के बाद आपको दूसरी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। पहला बात। दूसरा बात, लोकेशन कहाँ है दुबई? ईस्ट और वेस्ट एकदम बीच में। सर ये बहुत छोटी बात नहीं है। इमेजिन करिए दुनिया में कितने लोग हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन, 800 करोड़, राइट सर। 250 करोड़ लोग सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे है दुबई से, और 500 करोड़ लोग सिर्फ 8 घंटे की दूरी पे है। मतलब आधी से ज्यादा जनता तो सिर्फ 8 घंटे की दूरी पे है दुबई से। ये लोकेशन है दुबई, राइट एट द सेंटर। और कनेक्टिविटी इतनी, दुबई बॉम्बे की पर डे मेरे ख्याल से 30 से ऊपर फ्लाइट चलती है, हर एयरलाइन 4-4, 5-5 फ्लाइट चलाती है बॉम्बे दिल्ली की। इज द कनेक्टिविटी। तो दुबई आना जाना और विच कॉस्ट, मतलब 20,000 रुपये के अंदर तो रिटर्न टिकट आ जाती है। इस कॉस्ट के ऊपर दुबई बैठा है। तो दुबई में बिजनेस करना बहुत ईजी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। डॉलर के साथ पैक्ड है, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, पैक्ड को हिंदी में अगर कोई बता पाए, मतलब डॉलर संधि है। और डॉलर दो क्या कहते हैं, हो सकता है डॉलर का बहुत बड़ा आगे फ्यूचर नहीं है, लेकिन आज डॉलर को बीट करने वाली और कोई करेंसी नहीं है, और दुबई की करेंसी उसके साथ पैक्ड है, इसलिए करेंसी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, मिडिल ईस्ट, दुबई की स्टोरी सबने सुनी होगी। आप मिडिल ईस्ट को एरिया को अगर जो जानता है, जिसने मिडिल ईस्ट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री या समझता है, मिडिल ईस्ट में हमेशा डिस्टर्बेंसेस रहे। आपने सुना होगा कभी इराक में ये वॉर, ईरान में ये डिस्टर्बेंस, जॉर्डन, सीरिया, यमन, कहीं भी ले लीजिए आप। किसी ने यूएई के बारे में सुना है कि यहाँ ये डिस्टर्बेंस हो रहा है? पूरे रीजन में सब जगह है, सिर्फ यूएई को छोड़ के। ऐसे पॉलिटिकल रिलेशंस दुबई मेंटेन करता है, और सेफ्टी के साथ। पूरे वॉर सब जगह, बीच में दुबई, जहां पे आप एकदम सेफ फील करते हो। सेफ्टी इतनी कि मुझे घर से यहाँ अगर दुबई यहाँ सूरत आना है तो मुझे घर पे ताला लगाने की जरूरत नहीं है, ये दुबई ऑफर करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबने देखा है दुबई का। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई प्रोवाइड कर सकता है वो अनबीटेबल है। टैक्सेस, ये सब करने के बाद भी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बाद भी आपको टैक्स नहीं देना है। कमाई हर कंट्री में है, बहुत जगह है, पर कमाने का फिगर के बाद बचता फिर भी दुबई में ज़्यादा है, आपको टैक्स ही नहीं देना है। सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात दुबई में धंधा करने की ये हो जाती है कि आपको टैक्स नहीं लगता। कॉर्पोरेट टैक्सेस आ रहे हैं, बट नॉमिनल टैक्स रेट्स है, और उसके अंदर भी काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड है कि एक्सेप्शंस आएंगे। तो सेफेस्ट प्लेस और लाइफस्टाइल कॉस्मोपॉलिटन है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का सागर है, क्योंकि हर नेशनैलिटी के लोग वहाँ मिलते हैं। एक्सेसिबिलिटी अब दूसरी कंट्रीज के साथ ईजी है, और लेविश लाइफस्टाइल है। तो दीज आर द थिंग्स जो दुबई को बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी का जगह बताती है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, वेरी स्पेसिफिक। लॉजिस्टिक की फैसिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे कुछ पोर्ट्स है, जैसे डीपी वर्ल्ड का जो जाफजा पोर्ट है, नंबर 1 वन ऑफ द नंबर 1 पोर्ट्स। तो वो ऐसे सब पोर्ट्स और वहाँ की ऐसी सब लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ होने की वजह से अफ्रीकन जो बहुत ग्रोइंग मार्केट है, उसका सीधा सीधा गेटवे एशियन मार्केट्स के लिए हो गया है। अगर आपको उस तरफ अफ्रीका मार्केट में कोई भी बिजनेस करना है, एशियन मार्केट्स के लिए बहुत ईजी है दुबई से होकर जाना। वैसी सर्विस दुबई आपको ऑफर करता है। दुबई का टोटल एक्सपोर्ट आप समझिएगा 5 लाख, नॉन ऑयल के 5 लाख करोड़ के आसपास का है, और अफ्रीकन मार्केट के अंदर लास्ट डिकेड के अंदर आसपास 20 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ होगा नॉन ऑयल। और आने वाले डिकेड में आप समझिए 40 लाख करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्टेड है। 40 लाख करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्टेड है, और अपन क्या कर रहे हैं यार? सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले ये इसका एडवांटेज तो सूरत उठाना चाहिए। ये जो नंबर 40 लाख करोड़ का आता है, ये अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अफ्रीका की कंजम्पशन को देखकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्यों चाइना को मीट नहीं कर सकते क्या?
जब चाइना इतना बड़ा माल बेच सकता है, सब जगह बेच सकता है, सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बाकी सारे सेक्टर्स में भी, तो अपन क्यों नहीं? तो सबसे ज़्यादा सीधा सीधा एडवांटेज उठाने का मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है। मेक इन इंडिया कैंपेन को सर एकदम जोर शोर से बढ़ाइए, और दुबई है उसके थ्रू अपन पूरी सब जगह अपन पहुंच सके। 25,000 अफ्रीकन कंपनीज दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लिस्टेड है, तो अफ्रीका इज़ ए ह्यूज पोटेंशियल। जो अपनी थोड़ा बहुत भी जो भी माल बनाते हैं और जो लगता है कि वहाँ बेच सकते हैं, तो दुबई आइए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बिजनेस का। टेक्सटाइल को मैं थोड़ा टच करूँगा कि काफ़ी सारे यहाँ पे मेंबर्स हैं। टेक्सटाइल के लेकर दुबई में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। ऑयल के बाद दुबई में टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड। वहाँ पे 5.5% मिडल ईस्ट शेयर होल्ड करता है टेक्सटाइल बिजनेस में। और आप इनिशिएटिव्स आप देखिए, दुबई फैशन एस्टेब्लिश हुआ, दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फैशन काउंसिल बना है, दुबई टेक्सटाइल विलेज है जो टेक्समास, और अब SGCI ने काफ़ी सारे खुद MOU किए हैं टेक्समास के साथ। तो बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है टेक्सटाइल बिजनेस पर से को लेवरेज कर आगे लेके जाने की। दुबई सूरत का परफेक्ट मैच है, मैंने स्पेसिफिकली डाला है क्योंकि डायमंड ने तो बहुत ही अच्छे से दुबई के साथ जोड़ी बना। अब आप जो यहाँ पे जो डायमंड इंडस्ट्री में उनको मालूम होगा कि जो रफ के बायर्स है उनको दुबई आए बिना नहीं चलता। पूरे मार्केट को कैप्चर करके उन्होंने दुबई को हब बना दिया। तो अब रफ बिजनेस में आपको चाहिए तो आपको आओ दुबई संभाल कर। सेम अब बारी है टेक्सटाइल की और बाकी इंडस्ट्री की, और बहुत बड़ा स्कोप है। राइट तरीके से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, राइट तरीके से गाइडेंस की ज़रूरत है, और उसी के लिए हम आज हैं। दिस हैंड होल्डिंग की सर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी माइंडसेट से अपन यहाँ हैं कि जो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली हम देखते हैं बैक इन वहाँ पे हम जो दुबई बैठ के, वो राइट तरीके से चैनलाइज होनी जरूरी है। यहाँ पे सब बिजनेस करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी भी है, उसका चैनल बनने के लिए हम रेडी हैं। आपको हर वो सपोर्ट देने के लिए हम रेडी हैं। कुछ एक MOUs जो SGCI ने ऑलरेडी साइन कर चुके हैं काफ़ी सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हम वहाँ भी जब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं तो हम SGCI का नाम सुनते हैं सर, हमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस आते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, क्योंकि हम जब सूरत से बिलोंग करते हैं तो वी फील दैट। और MMF सूरत के MMF फैब्रिक को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए अक्रॉस 90 कंट्रीज़ में टेक्समास के साथ SGCI ने हाथ मिलाया। एक्सपोर्ट एडवांटेज, सीधी मुद्दे की बात करूंगा मैं। दुबई में बिजनेस करने का फ़ायदा क्या? काफ़ी सारे लोग एक्सपोर्ट करते होंगे, उनका माल कहीं ना कहीं जाता होगा, आप लोकल बेचते होंगे फिर वो एक्सपोर्ट होता होगा, या इंटरमीडिएट के थ्रू आप एक्सपोर्ट करते होंगे, कैसे भी आपका माल जाता होगा। दुबई में आइए, सीधा माल बेचिए मार्केट में, उसका फ़ायदा क्या? आप डायरेक्ट मार्केट में कनेक्टेड रहते हैं, तो मार्केट में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, उस हिसाब से आप खुद अपने अंदर चेंजेस लाकर वैसा माल बना सकते हैं। 1 दूसरा, इंटरमीडिएट को साइड में रखकर अगर आप सीधे डायरेक्ट मार्केट में ऐसे आप एक्सेस लेते हैं तो आपका खुद का रियलाइजेशन और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तीसरा, टैक्स एडवांटेज, अगर पैसा आपने वहीं पार्क किया है और आपको यहाँ पे टैक्स अगर आप नहीं ला रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास कंप्लीट हॉरिजॉन है, वहाँ से आप चाहो वहाँ पैसा बेच सकते हो, ग्लोबल एक्सेस है, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ आपको फिर भी एक बार RBI की पोर्टफोलियो लेनी पड़ती है, वहाँ आपको ग्लोबल मनी एक्सेस वहाँ पे आपको अलाउड है, तो पूरा का पूरा आपका पैसा टैक्स फ्री रहता है। तो टैक्स एडवांटेज है आपको। लोअर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, उस धंधा करने के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो भी आपको चीपर रेट पे मिल जाता है कंपेयर टू इंडिया। एक्सेस टू बेस्ट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और कॉन्फिडेंशियल एंड ट्रेड सेंस। आज ही मैं यहाँ पे किसी से बात कर रहा था, ये बहुत क्रिटिकल है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेनली दुबई में कंपनी सिर्फ इस एक ही कारण के लिए खोल देते हैं। दुबई में इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को जो एक चैलेंज फेस हो रहा है सर, नोट करने की बात है, इसका रास्ता मुझे नहीं मालूम कैसे क्या निकल रहा है, कि दुबई में यहाँ से जितने भी लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनको डर रहता है कि मेरे कस्टमर या मेरे सप्लायर का नाम चढ़ा हुआ है पोर्ट पे, और पोर्ट कहीं वो नाम आगे बेच ना दे। आज मेरे ही कॉम्पिटिटर को मेरे सप्लायर या कस्टमर का नाम ना पता चले। उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए दुबई में लोग कंपनी खोल देते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन उनके कस्टमर और सप्लायर की लीक ना हो। दिस इज वेरी क्रिटिकल, विच इज अनदर एन इम्पॉर्टेंट वे। जब तक इसका कोई रास्ता नहीं निकलता, इट इज़ गुड वे टू डू इट। इसलिए आपकी जो ट्रेड जो सीक्रेट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो सेटिंग अप अ कंपनी इन दुबई, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं,
दुबई में अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको ऑफिस या जो वेयर हाउस चाहिए वो करने से पहले आपको उसके अपने नाम पे एक रजिस्टर्ड कंपनी करनी पड़ेगी। मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर विल टेक ऑन द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे विल टेक इट। मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेनलैंड का ऑप्शन है, वहाँ पे बहुत सारे फ्री जोन्स के ऑप्शन है। अपनी नीड के हिसाब से, अपना क्या है उसके हिसाब से वी कैन सजेस्ट एंड गाइड कि हाँ अपने को अपनी कंपनी खोलनी चाहिए। एक लोगों में अभी भी शायद मिथ है कि अगर आपको दुबई में कंपनी करनी है तो मुझे लोकल को भागीदार बनाना पड़ेगा। नॉट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में वैसा नहीं है। अब आप 100% ओनर हो सकते हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, आपको मेनलैंड हो या फ्री जोन आप आपको 100% ओनरशिप अवेलेबल है। कॉस्ट 15,000 दिरहम के आसपास से तो आप कंपनी सेटअप कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन फ्री जोन टू फ्री जोन वेरी करती है, लेकिन दैट इज द स्टार्ट। वहाँ से आप अपने अपना फ्लोट हो जाता है। फिर कितनी बड़ी आपको ऑफिस चाहिए, क्या साइज का बिजनेस चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट दैट इज अ गुड स्टार्ट। फिर आपको किस बिजनेस में आपको क्या बिजनेस करना है, क्या आपका प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने को वो लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे टेक्सटाइल रिलेटेड लाइसेंस आता है, डायमंड रिलेटेड लाइसेंस आता है, रियल एस्टेट का लाइसेंस आता है। अब मैंने कुछ FAQs मेरे हिसाब से रखी है कि जो एक फ्रिक्वेंटली आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल होंगे, वो मैंने मेरे हिसाब से कुछ रखे हैं। उसके बाद विल टेक फर्दर। कितना जल्दी मिल जाएगा लाइसेंस मुझे? लाइसेंस आपको यूजुअली टाइम रेंज है 4 से 10 दिन के अंदर दुबई आपको लाइसेंस दे देता है। डज द लाइसेंस हैज टू बी रिन्यूड एवरी ईयर? बिल्कुल। जो खर्चा है लाइसेंस का वो हर साल लगता है, हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है। क्या मुझे ज़रूरी है मुझे ऑफिस या शॉप वहाँ पे करनी पड़ेगी? मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ कंपनी करनी हो तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दुबई ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहाँ आप वर्चुअल ऑफिस के साथ भी बिजनेस कर सकते हो। आपको वहाँ पे ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है मुझे मेरा जो लोग हैं वहाँ वो घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, या वहाँ पे भी नहीं, मुझे यहाँ इंडिया बैठ के भी काम करना हो, मेरा हो सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मुझे दुबई में रहना पड़ेगा कंपनी रजिस्टर करने के लिए? मुझे वहाँ आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा? जी नहीं। कंपनी खोलने के लिए आपकी आपके प्रेजेंस के बिना कंपनी वहाँ सेटअप हो सकती है। हाँ, उसके बाद बैंक अकाउंट के लिए या वीज़ा के लिए आपके आने की जरूरत पड़े, लेकिन कंपनी सेटअप आपकी हो जाती है। किस टाइप के लाइसेंसेस मिलते हैं? जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ट्रेडिंग के लाइसेंस अलग होते हैं, आपका सर्विस बिजनेस है तो सर्विस के अलग होते हैं, और आप अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के हैं तो उसके लाइसेंसेस अलग होते हैं। फ्री जोन चूज करने के बेनिफिट्स, फ्री जोन चूज करने के बेनिफिट्स काफ़ी सारे। एक तो है कि ड्यूटी एडवांटेजेस मिल जाते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेसेस में है और आपका लोकल वहाँ पर माल बेचने का नहीं है तो कस्टम ड्यूटी की आप बच जाती है, प्लस आपको ओनरशिप 100% मिलती है, टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, और प्लस हर फ्री जोन की अपनी खुद की वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है जिसका एडवांटेज अपने को मिलता है। कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है? सिंपल है। नाम बताइए, क्या आपको कंपनी का नाम रखना है वो चूज़ करिए, किस बिजनेस में क्या एक्टिविटी आपको चाहिए, ऑफिस आपका स्पेस बताइए, और दैट इज इट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दिस आर वी एज पैटर्न्स। सो हम यहाँ इसीलिए है, हम अपने बारे में बताएं हम क्या कर सकते हैं और आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। एंड वी आर प्राउड एंड वेरी हैप्पी दैट वी आर एसोसिएटेड विद ट्विन, जो हमारे एज पैटर्न्स को यहाँ फर्दर आप लोगों की यहाँ हेल्प करेगा एंड ही विल बी द वन सपोर्टिंग यू। बहुत सिंपल प्रिंसिपल, एक ही मोटो पे हम लोग काम करते हैं, योर सक्सेस इज अवर बिजनेस। बहुत ही क्लियर माइंडसेट है। जब हम लोगों ने कंपनी सेटअप की थी, बहुत ही हम लोग वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, सिद्धांत, बहुत ही वैल्यूज़ ओरिएंटेड हमारी कंपनी है। अगर क्लाइंट का फायदा नहीं तो हमारा कोई फायदा नहीं। तो हमारा एंगल हर किसी में, वी आर वेरी कस्टमर, वेरी क्लाइंट सेंट्रिक। आपका सक्सेस ही हमारा एक ही सोल मोटो है। तो वी आर ब्लेस्ड कि ट्रस्टवर्दी, वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी कंसल्टिंग फॉर्म में हमको कंसिडर किया जाता है वहाँ UAE में, और हम लोग इसको फर्दर लिवरेज करते हैं। और हम लोग, हमारी यही कोशिश रहती है कि माइंडसेट लोग क्लाइंट्स का हमेशा यही रहे कि वो हम पे भरोसा करते चले। हाई क्वालिफाइड टीम, मैं इसको इसलिए स्ट्रेस करता हूँ कि हमारे जो साथ जो मेरे पार्टनर्स हैं और जो टीम है, सब धुरंधर लोग हैं। ऐसे नहीं है मतलब सिर्फ एक हम लोगों ने टीम नहीं खड़ी कर, हम लोग सब लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और इसलिए सब ऐसे धुरंधर लोग जुड़ रहे हैं कि जब क्लाइंट को जब वो सर्विस देखे तो उसको वो सेटिस्फेक्शन लेकर जाए कि हाँ वी आर एट वेरी सेफ हैंड्स, और हमारा काम, इन्होंने अगर एडवाइस और ओपिनियन दे दी है तो हमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क,
सिंस मुझे नेटवर्किंग का पैशन है और मेरे पार्टनर्स को भी है, सो वी आर वेरी वेल कनेक्टेड इन यूएई। तो अक्रॉस सिंस यहाँ जैसे एसोसिएट पार्टनर्स है टूइंग के, तो वैसे हमारा नेटवर्क बिल्ड होता रहता है। और विद इन यूएई भी फॉर एनी रिक्वायर्ड थिंग हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉग है, विच हमको ही हेल्प करता है हमारे क्लाइंट की सारी नीड्स फुलफिल करने के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन, सिंपल। ये हमारा जब हम लोग हमने कंपनी जब खोली थी तब से हमारा विचार यही था कि हम लोग की हमारी एक्सपर्टीज हम लोग ऑफर करते हैं, बट स्टिल वी वांट कि क्लाइंट को कहीं और जाना ना पड़े। अब आप आओ, आपको दुबई में कंपनी खोलनी है, उसके लिए आपको ट्रैवल का अरेंजमेंट चाहिए, कर देंगे। आप आए दुबई, आपको गाइडेंस चाहिए, किसके नाम पे कंपनी खोलूँ, ब्रांच करूँ, सब्सिडरी करूँ, मेरे नाम पे खोलूँ, फैमिली के नाम पे खोलूँ, वो गाइडेंस हम दे देंगे। अच्छा, कंपनी खोलने का सेटअप कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ऑफिस चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, ये कौन हेल्प करेगा, कर देंगे, वो भी हम कर देंगे। अच्छा, वो हो गई, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे, कस्टम्स हैंडल कर देंगे। सर, आपके ऑफिस में टिश्यू पेपर तक की भी अरेंजमेंट हम कर देंगे। और बताइए क्या चाहिए, आप सिर्फ आइए, और धंधे पे बहुत क्लियर बात। हेलो सर, आप आइए, सिर्फ बिजनेस पे फोकस करिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। क्विकली मैं प्रोसेस खाली बता देता हूँ कंपनी सेटअप का। हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंपनी सेटअप करते हैं, फ्री जोन्स के साथ लाइसेंसिंग का हमारा काम होता है। फ्री जोन के साथ लाइसेंसिंग का काम होता है। सारे वहाँ के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हम लोग अटेंड कर लेते हैं। गोल्डन वीज़ा ऑफर कर रहे हैं, 10 ईयर्स के वीज़ा दुबई ऑफर करती है, हम लोग वो प्रोवाइड करके देते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हमारी ये कंपनी सेटअप एंड लाइसेंसिंग वाली डिपार्टमेंट वाला कर लेते हैं। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ये हमारा फोर्टे है, सिंस वी बीन चार्टर्ड अकाउंट्स और टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो वहाँ के सारे भी आपकी अकाउंटिंग ऑडिट रिलेटेड नीड्स है वो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। उसमें अगर आपकी अकाउंटिंग टीम ऑलरेडी है तो हम एज ए CFO एक्ट कर लेते हैं कि जहाँ हम लोग रिव्यू करते हैं आपके अकाउंटेंट ने काम सही किया है नहीं किया। अगर आपको रिमोटली अकाउंटेंट चाहिए तो हम वो आउटसोर्स, आप हमको आउटसोर्स कर सकते हैं। आपको चाहिए कि फुल टाइम अकाउंटेंट हमारी साइड से आपके यहाँ डिप्लॉयड हो तो हम लोग वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दुबई में रिसेंटली काफ़ी सारे लॉज नए आए हैं, तो कंप्लायंसेस कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा हो गए। AML के रिलेटेड, सब्सटेंस रेगुलेशन से रिलेटेड, UBO से रिलेटेड काफ़ी सारे रेगुलेशंस नए आए हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, इंक्लूडिंग द बेसिक वैट, वहाँ का एक्साइज, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस नए आ रहे हैं, और इंडियन टैक्सेशन मेनली जो मैं ऐड इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको जब कंपनी आप सेटअप करते हैं तो आपको यहाँ के रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना है। तो इट्स वेरी मच अलाइंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुबई के रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिया एंड यू विल बी फ्री। आपको स्टिल भी यहाँ को इफ़ यू गो ऑन एंड डू द कंपनी फ्रॉम हियर, आपको यहाँ के FEMA के रेगुलेशंस, यहाँ के इनकम टैक्स, इसी के लिए देन वी आर एसोसिएटेड विद डूइंग, जो ये सब चीज़ें वी कैन हैंडल इट फ्रॉम हियर। उसके बाद वी हैव द इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा काम है। आपने अगर पैसा बना लिया है तो हमको आप पास आइए, हम वी नो हाउ टू अरेंज इट, हाउ टू पार्क इट। We have lot many opportunities and avenues available as far as the investment goes. Mergers and acquisitions. आपने दुबई में बिजनेस कर लिया है स्टार्ट, आपका बिजनेस है, अब आपको एक्सपांड करना है, आपको चाहिए कि मुझे कोई रेडी बिजनेस है मैं उसको एक्वायर कर लूँ, हम वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपको बिजनेस बेचना है, आपको लगता है कि मैंने उसकी वैल्यू खड़ी कर दी है, इट्स राइट टाइम फॉर मी टू एग्जिट, हम आपका एग्जिट भी दिलवाते हैं। ये सब काम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डिपार्टमेंट करते हैं। उसके अंदर एंड टू एंड आपका कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, इनफैक्ट आपके ही बिजनेस को किसी और इन्वेस्टर को पास प्रेजेंट करने के लिए उसका पिच डेक बनाना, उसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना, ऐसी सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। मैंने इसको इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट रखा है जिससे आपके सवालों को एड्रेस करने में मैं ज़्यादा टाइम दे सकूँ। आई विल आस्क तुहिन हियर, तुहिन इज़ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे है तो तुहिन वुड बी द आंसरिंग। आई विल ओपन दिस फ्लोर, अब मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए रेडी। थैंक यू। Ashok bhai, thank you so much. इतना वैलिड एंड
रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें देने के लिए। जो चीज़ें देखी, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, एंड देन वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर पीपल। ये फ्री ट्रेड जोन और मेनलैंड वाला एक फंड आपने बताया, दैट देयर इन दुबई देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री ट्रेड जोन और एक मेनलैंड है। फ्री ट्रेड जोन के कुछ फ़ायदे बताए आपने, पर ये फ़र्क पड़ता है कि आज मैं अगर मेनलैंड में खोलूँ तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट अलग है, एक FTZ में खोलने जाओ तो डू आई हैव टू लुक एट इन्वेस्टमेंट इन अ डिफरेंट वे? व्हाट इज इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू कंसिडर बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन? वो थोड़ा मुझे अगर बता सके तो। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं जो समझ रहा हूँ इस पर यह है कि एक तो अगर ऑलरेडी मैं मान लो अगर फ्री ट्रेड जोन में कंपनी कर चुका हूँ, इफ़ आई गो टू मेनलैंड तो मुझे क्या मेरे को वापस फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? वन। एंड क्या फैक्टर्स है जो मुझे सोचने पड़ेंगे कि मैं मेनलैंड में करूँ या फ्री जोन में? पहले क्वेश्चन का आंसर करते हुए, यस, अगर आपने फ्री ट्रेड जोन में आपकी कंपनी है, आपकी फ्री जोन में कंपनी है, आप उसको वापस मेनलैंड में स्विच नहीं कर सकते। वो क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपको उसको बंद करके आपको नई कंपनी करनी है। तो अगर आपको अगर फ्री जोन में भी चाहिए और मेनलैंड में भी चाहिए तो आपका इन्वेस्टमेंट यस आपका इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड कि क्या फैक्टर्स है कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं फ्री जोन करूँ कि नहीं? एक सिंपल क्राइटेरिया ये होता है, आपको ऑफिस कहाँ चाहिए। अगर वो बहुत क्लियर है, जैसे मान लो अगर मुझे मेनलैंड में, जैसे मान लो कि बाजार के अंदर गोल्डसुक के अंदर मुझे दुकान ही करनी है वहाँ पे, अब गोल्डसुक के अंदर दुकान करनी है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे मेनलैंड का ही करना। लेकिन अब मेरा ये क्राइटेरिया नहीं है, मेरा क्राइटेरिया ये नहीं है मुझे कहाँ ऑफिस चाहिए, मुझे तो बेनिफिट्स चाहिए। जैसे मान लो मुझे DMCC फ्री जोन में अल्मास जैसे एक बहुत बड़े अच्छे लैविश जगह पे रहना है और वहाँ रहना है, और मेरा बंदा जाएगा बाजार में और वहाँ जाके माल बेचेगा, मुझे वहाँ बाजार के अंदर दुकान की ज़रूरत नहीं है, तो फ्री जोन इज़ अ गुड ऑप्शन। फ्री जोन आपको दूसरे बेनिफिट्स भी देता है, कस्टम ड्यूटी, कस्टम के बेनिफिट्स भी देता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हो तो नो ब्रेनर है, उसमें आपको सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि फ्री जोन के अंदर ही आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर आप वही मेनलैंड में करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। सो देयर आर फ्यू फैक्टर्स। यस। सर गुड इवनिंग। मेनलैंड में ऑफिस करने के लिए अभी भी वो फॉर्मूला है वहाँ पे, वो 51% लोकल रेसिडेंट एंड 49% अपना के, इज इट गॉन नाउ? गुड क्वेश्चन। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये था, अब नहीं है पर कंप्लीटली नहीं गया है, अब चेंज थोड़ा बहुत आ गया है। प्लीज बढ़िया ना। तो पहले ऐसा था, दुबई के अंदर आपको कंपनी करनी है, मेनलैंड में तो 51% लोकल को भागीदार बनाना पड़ता था। अब उन्होंने वो निकाल दिया। अब दुबई कंप्लीटली बहुत लीनियंट हो गया है, ट्रेड को देखते हुए जिस तरह से दुबई बढ़ रहा है उसको देखते हुए बहुत लीनियंट हो गया है। तो अब उन्होंने वो निकाल दिया, 100% आप ओनर हो सकते हो, पर उन्होंने लिस्ट बनाई है कि इन बिजनेस में, इसके अंदर ट्रेडिंग के मोस्ट ऑफ द बिजनेस कवर है। लेकिन अभी भी कुछ बिजनेसेस उन्होंने ऐसे रखे हैं जो उन्होंने रखा है कि नहीं, इसमें तो लोकल भागीदार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल ऑडिट का लाइसेंस। अब मुझे अगर ऑडिट का लाइसेंस चाहिए तो वो सिर्फ वहाँ लोकल को मिलता है। दूसरा रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में वो लोग काफ़ी अब वापस चेंज ला रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में अभी भी वो चाहते हैं कि लोकल भागीदार हो। ऐसे कुछ एक बिजनेसेस है जहाँ पे वो अभी भी है, पर मोइनली जो ट्रेड रिलेटेड है उसमें आप 100% आप ओनर हो सकते हैं। Good evening, everyone. So I'm having 4 questions, but I will be fair to all the people, so I'll take one by one. Sir, one of the big buyers that we have, as per Dubai is concerned, is firstly it's a tourist city. Somehow people might have greater buyers, but the one thing is the Islamic country buyers that we have. I think we should firstly clarify, because lot many people might want to get into these markets, but there is this thing, this whatever the Sharia law of Islam. So could you please throw light firstly on that? बहुत अच्छा सवाल है। दुबई जितने लोग ट्रैवल करते हैं और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री में है, इसलिए इस्लामिक कंट्री में ट्रैवल करते हैं, वो दुबई और बाकी इस्लामिक कंट्री के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। दुबई जो, मैं जब 8 साल पहले दुबई गया था, दुबई तब भी फॉरवर्ड था, लेकिन अगर रमज़ान के टाइम पे कोई दुबई गया है तो उसको पता होगा। आप अगर रमज़ान के टाइम पे दुबई गए हो तो ना आप सर पानी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकते। ये बात थी 2 साल पहले। आज हम लोग दुबई रहने वाले ये इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल अब है ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं मैं एक इस्लामिक कंट्री में हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ एक टाइम इंडिया आता हूँ ना, तब ये टाइम आता है
कि जहाँ मुझे लगता है कि यार मैं इस्लामिक या जोन में हूँ और जहाँ पे मैं हूँ, मुझे दुबई में फील नहीं आता। बहुत अच्छी बात है, वो अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं, बट वो एनफोर्स नहीं करते किसी पर। उन्होंने बहुत क्लियर डिमार्केशन रखी हुई है, हम अपना रिलीजन फॉलो करेंगे, आप आपका रिलीजन यहाँ इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम अपना रिलीजन आपके ऊपर इन्फोर्स नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत ही वेलकम मूव निकाला है, जिससे वहाँ के रहने वाले मेजर लोग इस्लाम है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग देयर आर इस्लाम, बट नॉन इस्लामिक लोगों को कभी भी ये डर या फील नहीं आता। सर इंडिया में लोगों को आता है, दुबई में कभी नहीं आता। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन मैं इसके ऊपर फर्दर बात नहीं करूँगा। लेकिन आई बी वेरी क्लियर, इस्लामिक नेशन होने की वजह से ट्रेड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका दूसरा हाँ प्लीज पीछे Yeah, good evening. Can you please enlighten something about virtual office as you are mentioning? I would like to understand, because right now we are having office over here in Gujarat, we are having manufacturing in Karnataka, and we would like to shift one offices, or we would like to keep our same, parallel office as if it is in Dubai. How virtually we can do it? सर आपका नाम और कंपनी का नाम भी बताइए। Sir, myself Paresh Bhatt. I am also member of chamber, and I am actually working as a consultant in a business administration. तो अगर मैं आपका क्वेश्चन सही समझा हूँ तो ये है कि आपके ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिसेज है और आपको दुबई में ऑपरेशन करना है, लेकिन यू डोंट नीड अ फिजिकल ऑफिस, राइट? बिल्कुल पॉसिबल है सर। बस बात दो तीन इतनी सी है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे दुबई में ऑफिस नहीं करना, तो क्या एम्प्लॉयज़ होंगे दुबई में? अगर होंगे तो कितने होंगे? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको वर्चुअल ऑफिस चाहिए तो वर्चुअल ऑफिस में आप थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ रख सकते हो, 3-4, लेकिन उससे ज़्यादा अब आप मुझे बोलते हैं कि मुझे 10 या 12 जन की टीम दुबई में करनी है, तो शायद आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट आ सकती है। बट उसके बिना वर्चुअल ऑफिस पे यस, वर्चुअल ऑफिस का भी कॉस्ट है वहाँ पे, बट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। जो फिजिकल ऑफिस का कॉस्ट लगता है, इतना बड़ा खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, वो वर्चुअल ऑफिस से काम हो जाता है। हाय सर, दिस इज हेमंत बजाज। मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट टैक्स भी आ रहा है दुबई में, और कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा किसी तरीके के वैल्यू एडेड टैक्सेस भी है क्या? और वो आ रहा है तो कब आ रहा है, कितने टाइम में? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब टैक्स बोलते हैं, दुबई टैक्स नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत वैलिड हो जाता है। सबसे पहला वैल्यू एडेड टैक्स है वहाँ पे। 2018 से इनडायरेक्ट टैक्स 5% वैल्यू एड टैक्स लगता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं उनके लिए मैं खाली ऐसे ही बता दूं कि वैल्यू एडेड टैक्स जो टैक्स होता है वो कंज्यूमर को लगता है, बिजनेसेस को नहीं लगता। बिजनेस से पास होता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर को लगता है, तो बिजनेसेस के लिए वो एक्सपेंस नहीं है वैसे। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है, वो आएगा जून 2013 के बाद। जितनी फिनेंशियल ईयर शुरू होते हैं, मेनली जनवरी से होते हैं, तो जनवरी 2014 समझिए आप। जनवरी 2014 से जो भी साल है उनमें सबको कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और कॉर्पोरेट टैक्स 9% लगेगा। अभी लॉ बाहर नहीं आया, इससे फर्दर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कंसल्टिंग पेपर जो बाहर आया उसमें एक बात ज़रूर लिखी है, अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अगर आप मेनलैंड में माल नहीं बेचते हो, तो आप फ्री जोन में कंपनी करके पूरा टैक्स बचा सकते हो। इतनी कंसल्टिंग पेपर में बात बहुत क्लियर लिखी है। फर्दर डिटेल्स जब तक लॉ नहीं आएगा तब तक नहीं बता सकते, लेकिन अगेन मैं फिर भी एक बात बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेस करूंगा कि टैक्स रेट 9%, इसलिए ट्रेड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉफिट पे 9% आपको पे करना है, माल पे नहीं। सो ये मेक सेंस फॉर। चलो, गुड इवनिंग, मैं प्रकाश मेहता। आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी दुबई ऑफिस खोलने के लिए, और व्हाट अबाउट द न्यू एग्रीमेंट सीपा? दुबई में कोई माल जो है करेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, या दुबई से इंडिया जो आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा? थैंक यू। आरबीआई की परमिशन की जो आपने बात की है, अब अगर आप इंडिविजुअल नाम पे अगर आप कोई दुबई में बिजनेस करते हैं, यहाँ के रेगुलेशंस फर्दर आप यहाँ के कंसल्टेंट ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन ये बात है कि आपको यहाँ डिक्लेयर बिल्कुल करना पड़ता है। जब आप यहाँ से फंड्स इन्वेस्ट करके जब दुबई भेजते हैं, तब आपको बैंक को बताना पड़ता है, बट उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप एलआरएस स्कीम के थ्रू $2.5 लाख एवरी ईयर बिना अप्रूवल के भेज सकते हैं। बहुत सिंपल।
लेकिन अगर आप सब्सिडरी कर रहे हैं तो यस आपको ODI थ्रू के रूट के थ्रू जाना पड़ता है, कुछ प्रोसेसेस है, बट ट्रस्ट मी हम लोगों ने सिंस इतनी सारी कंपनी की है तो बहुत हैसल नहीं है, वो सिंपल प्रोसेस, वो मैनेज हो जाता है। पर इंडिविजुअल कंपनी करने के लिए तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन था शायद सीपा, तो आप जिस टैक्सेस की बात कर रहे हैं वो कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी दुबई के अंदर अगर मेनलैंड में है तो 5% है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिवर्स केस है, ऑनेस्टली मुझे यहाँ की कस्टम ड्यूटी का आइडिया नहीं है। हाँ એક ક્વેશ્ચન એવો છે કે આપણા સુરતીઓ ત્યાં ટેક્સ માસમાં લગભગ ચલાવે છે અને મેજોરિટી મારવાડી સિંધી છે, એ લોકો ત્યાંથી $10 બિલિયન એક્સપોર્ટ કરે છે 90 કન્ટ્રી, અને ફેબ્રિક બધું જે છે તે સુરતથી લગભગ જાય છે અને લુધિયાના પંજાબથી બીજું જાય છે, તો એ લોકો જે એક્સપોર્ટ કરે છે તે એ લોકોને એક્સપોર્ટ બેનિફિટ મળે છે, દુબઈ ગવર્મેન્ટ કંઈ આપે છે? દુબઈ ગવર્મેન્ટ એક્સપોર્ટ બેનિફિટ એઝ સચ કંઈ બહુ નથી આપતી, એટલે કંઈ તમારે કન્સેશન નથી, કેમ કે એનીવેઝ કંઈ ટેક્સ નથી, કંઈ લીધું હોય તો એમના તમને કન્સેશન કરી આપે, બટ એવું કંઈ ચાર્જ જ નથી કે જ્યાં તમને એવું કર્યું, બટ યસ એ પ્રમોટ કરે બીજી રીતે કે ભાઈ ટ્રેડમાં એક્સપોર્ટ વધે, બિઝનેસ આવે, એની માટે ફેસિલિટીઝ આવી આપે, બટ સબસિડી આપવી કે ભાઈ બીજું કંઈ આપવું એ તો પ્રશ્ન નથી, કેમ કે ત્યાં બીજું કોઈ ટેક્સ નથી. सर ट्रेंड एनालिसिस कैसे होगा? जैसे इंडिया का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होगा दुबई से, तो जो हम लोग इंडिया में सेल कर रहे होंगे गुड्स वो दुबई में काफ़ी डिफरेंट होगा, वहाँ का रहना पहनावा जो भी होगा डिफरेंट होगा, तो सर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में बैठे बैठे दुबई में क्या सेल हो रहा होगा वो कैसे पता करेंगे? गुड क्वेश्चन, कितना मेरे लिए रिलेवेंट है मुझे आइडिया नहीं है, बट दो बातें इसमें मैं कहूँगा। दुबई आइए, मैं चाहता हूँ दुबई आइए और आप वहाँ बैठ के स्टडी कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी हम अरेंज करके देंगे। दूसरा, जब आपने जो आप पॉइंट है कि एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, उनसे मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ आपको, जो आप क्या माल बना रहे हैं, दुबई में क्या माल चलता है, उसकी पूरी स्टडी कर कर आपको रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं। सर बैंक्स के अंदर अगर फाइनेंस वो देते हैं तो एज पर द शरिया लॉ दे डोंट टेक इंटरेस्ट फ्रॉम अस, तो वो इंटरेस्ट किस फॉर्म में चार्ज करते हैं, कितना करते हैं? एंड वन मोर थिंग वाज, सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन, बट दिस इज बिग क्वेश्चन। आई सॉरी, मॉर्गेज क्या मांगेंगे? बिकॉज वी आर गोइंग, वी डोंट हैव एनी मॉर्गेज टू बी गिवन ओवर देयर, सो व्हाट अबाउट द मॉर्गेज आल्सो ओवर देयर? थैंक यू। सबसे पहले तो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा शरिया लॉ। अब शरिया लॉ कंप्लाइंट हर बैंक नहीं होती, कुछ बैंक्स शरिया कंप्लाइंट होती है, वो इस्लामिक बैंक होती है। तो जितनी बैंक्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो उनका एक इस्लामिक डिवीजन अलग होता है जो इस्लाम कंप्लाइंट होती है। तो अदर बैंक्स को ऐसा मैंडेटरी नहीं है शरिया लॉ फॉलो करना, वो लोग लोन देते हैं भी और लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शरिया कंप्लाइंट की भी अगर बात करूँ, यूएई के अंदर उनको बिजनेस करना है, धंधा करना है, कानून कि उनका शरिया लॉ अपनी जगह पे है, उनका रिलीजन अपनी जगह पे है, उस रिलीजन को कैसे मेक श्योर करना कि रिलीजन और धंधा ओवरलैप ना हो, वो उन्होंने बहुत अच्छे से उसका रास्ता ढूंढा है। शरिया लॉ को उन्होंने उस तरह से रीफ्रेम करके उसको उस तरह से मॉडिफाई किए कुछ एग्रीमेंट्स को, जिसकी वजह से हो जाता है। मतलब शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जब जैसे बताया कि अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कैसे, तो वो रेंट के नाम पे, उस नाम पे फॉर्म पे करके उसको वो करके दे देते हैं, लेकिन इट्स डूएबल। दूसरा आपका जो कोलेटरल का क्वेश्चन था, लोन देना, कोई भी ट्रेड फाइनेंस, कोई भी बैंक ऑफ कोर्स उसकी क्रेडिबिलिटी जिसको दे रहा है उसकी चेक करेगी, उसकी सिक्योरिटी चेक करेगी। और अगर कोलेटरल, कई बार ऐसा है कि अगर आपकी इंडिया की कोलेटरल है तो लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर किसी और बैंक से वो किया जा सकता है। मतलब यहाँ की कोलेटरल यहाँ के किसी बैंक को दे देंगे, वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे दें, वो लेटर ऑफ क्रेडिट अब यूएई की बैंक को दे दो, वो उसके ऊपर डिस्काउंट करके आपको पैसा दे सकते हैं। सो दीज आर द सब वेज। मैं उसके और भी तरीके से फाइनेंस हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे खाली टच बेस कर दिया उसके ऊपर। प्लीज़ So the taxation I was about to ask, but it has been taken. So my main question is, जैसे आपने बोला दुबई आइए, but as rightly the gentleman asked, कहाँ आए? So what are the
key industries as per your research, किसमें पैसा है? Everybody wants to know that. Okay. So कहाँ है और क्या? And would you just differentiate on the business visa and the golden visa? Because since I'm having my office, I might be having a resident or a house or something. So the golden visa one thing is there. So differentiate on business visa and golden. एक जब आपने पहले क्वेश्चन पूछा था तब मुझे याद बताया था कि आपने टूरिस्ट कंट्री है वो आपने वो मेंशन किया था, मैं उसको आंसर करना चाहिए वो मैं मेंशन करना रह गया। सो दुबई टूरिस्ट इकोनॉमी है, टूरिज्म से बहुत पैसा आता है एंड हेंस टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ पे इतनी फ्लरिश्ड है, इतने लोग वहाँ पे फ्लॉक आता है, इसीलिए दूसरे बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं। टूरिज्म का सबसे बड़ा एडवांटेज है लोग आते हैं वहाँ। सर जहाँ लोग आते हैं वहाँ तो आप धंधा कर ही सकते हो। मेरे कितने फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात है, मेरे कितने फ्रेंड्स दुबई आते हैं घूमने, आने के बाद मुझे एक सवाल पूछते हैं जो आपने पूछा, यशुक भाई कुछ बताओ यार, धंधा यहाँ करना है मुझे, क्या करें? ये बात है। तो टूरिज्म ऐसे हेल्प करता है वहाँ पे बिजनेसेस को। तो वहाँ आने के बाद लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि इसमें कैसे बिजनेस, और जहाँ लोग हैं वहाँ माल बिकेगा, सीधी बात। और क्या बिजनेस करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई ट्रेडिंग हब है। अगर ऐसा होता कि जैसे यहाँ जैसे टेक्सटाइल है, डायमंड है, कुछ इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही होती तो मैं आपको बता देता, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लार्ज स्केल पे ऑफकोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है काफ़ी सारी, लेकिन अगेन इट्स अ ट्रेड इकोनॉमी। आप जो माल बेचना चाहते हो दुबई से वो बिक सकता है, वो वाली बात है। बट यस, अभी जैसे रियल एस्टेट बूमिंग है, टूरिज्म इज़ अ बिग इंडस्ट्री देयर, फूड FMCG इज़ अ बिग मार्केट है, जैसे ये सब कुछ बिजनेसेस है। स्क्रैप का बिजनेस है वो बहुत बड़ा है वहाँ पे, स्टील स्क्रैप का बिजनेस है। देयर आर गोल्ड, डायमंड, दीज आर फ्यू गुड बिजनेसेस जो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चल। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, जैसे आप वहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराएंगे तो आपका कंसल्टिंग चार्जेस क्या रहते हैं? फर्स्ट ईयर तो हो सकता है कि ज़्यादा होगा, फिर एवरी ईयर लगभग क्या होता है, तो इनको थोड़ा आइडिया आ जाए। जो कंसल्टिंग चार्ज तो वैसे तो नॉमिनली है, बट मैं कंसल्टिंग इन पर से की बात बताऊँ। जैसे आपने कहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कब आपको पैसा कितना देना पड़ेगा। जनरली जैसे लॉयर होते हैं वो पर घंटे के हिसाब से जैसे कुछ पैसे लेते हैं, कुछ CS भी लेते हैं। मेरी थियरी थोड़ी इसके अंदर अलग है। मैं अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, तो मेरे को अगर जहाँ मेरा टाइम कंसल्टिंग में जाता है मैं वहाँ जनरली पैसे चार्ज नहीं करता। मैं पैसा वहाँ चार्ज करता हूँ जहाँ मेरे एम्प्लॉय का टाइम जाता है। तो एज सच जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मालूम है कि वैसे मैं किसी भी कंसल्टिंग के लिए कभी भी ओपन रहता हूँ। कभी भी किसी एडवाइस के लिए मुझ पे फ़ोन आता है तो जनरली मैं उसको वेलकम करके उसको एड्रेस करता हूँ, और ना ही मैं उसके अंदर के कमर्शियल आस्पेक्ट देखता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं मुझे जाकर मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। वो दूसरा जो आपने जो बताया कि कितना चार्ज आप कंपनी सेटअप कर लेते हैं, वो बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि कितना एफर्ट इन्वॉल्व है, कितना काम इन्वॉल्व है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको मैं रेंज बता दूँ तो कंपनी सेटअप का खर्चे में 3,000 से 10,000 दिरहम तक का कंसल्टेंसी का खर्चा आता है, इज वन टाइम। परमिशन तो बराबर RBI લેશે ને ECC ને મળી જાય છે, પણ સપોઝ અમે ત્યાં એક વર્ષ ધંધો કર્યો ને 50,000 60,000 કે $1 લાખ અમે કમાયા, તો એ પૈસાવાળો ટેક્સ અમને ત્યાં ભરવો પડશે કે ઇન્ડિયા અમારે બેલેન્સ શીટમાં બતાવવો પડતો હોય છે કે અહીંયા ભરવો પડશે? गुड क्वेश्चन। तो इनका क्वेश्चन अगर सबने सुना नहीं तो इनका क्वेश्चन ये है कि अगर वहाँ हमने पैसा कमाए, उस कमाने के बाद उसके ऊपर टैक्स मुझे वहाँ भी भरना पड़ेगा, यहाँ भरना पड़ेगा। टैक्स जो होता है किसी भी कंट्री पे उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर इस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो अगर वहाँ का अगर कंपनी है, अगर वो वहाँ कंपनी है तो वहाँ उसको जो टैक्स भरना है, टैक्स भरना है। उस कंपनी को वापस यहाँ टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है तो वहाँ कंपनी ने टैक्स भर दिया, वो कंपनी का टैक्स यहाँ भर दिया। लेकिन वो पैसा जिस ओनर का है, वो ओनर वो पैसा लेता है, और सिंस वो ओनर अगर इंडियन रेसिडेंट है, वो NRI नहीं है, वो यहाँ का रेसिडेंट है, तो यस इंडियन गवर्नमेंट के उसके हिसाब से उनको ग्लोबल इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है। तो यस वो इनकम के ऊपर अगर आप वो डिविडेंड पैसा लेकर इंडिया आते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिया में भी उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। एक आपने लाइसेंस का जो बताया था कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लाइसेंस है। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी हो तो ट्रेडिंग तो वहाँ कई तरह की है, गोल्ड की है, टेक्सटाइल की है, कमोडिटी की है, इस तरह की है, तो क्या उसके लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है? इसमें सब फ्री जोन्स और सब मेनलैंड की अलग अलग थियरी है और अलग अलग अप्रोच है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल DMCC का देता हूँ।
DMCC इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड फ्री जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुबई की नंबर 1 फ्री जोन है। जैसे DMCC का फंडा ऐसा है, आप ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग में आप 6 बिजनेस पकड़ लो, कोई भी 6 बिजनेस आप कर लो, हम आपको एक ही लाइसेंस में दे देंगे। अच्छा, उसके ऊपर आपको 7वां बिजनेस भी करना है तो एक और नॉमिनल कॉस्ट थोड़ी आप ऐड कर दो लाइसेंस के ऊपर, तो आप 7वां बिजनेस भी कर लो। तो आपको जैसे मान लो आपको टॉय का बिजनेस करना है, चाय का बिजनेस करना है, गोल्ड का बिजनेस करना है, ये सब बिजनेस करना है, ये सब एक ही लाइसेंस में आपको हो जाए। 6 बिजनेस DMCC से अलाउ करती है एक ही कॉस्ट पे, ऐसा नहीं है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, एडिशनल खर्चा है। सॉरी, अभी रिसेंटली गोल्डन वीज़ा का दुबई ने लाया। गोल्डन वीज़ा मतलब 10 साल का वीज़ा देते हैं। दुबई के अंदर जनरली 1 साल 2 साल 3 साल के वीज़ा इशू होते थे, और सिंस वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं है तो वहाँ पे रहने वाले हर किसी को वीज़ा पे रहना पड़ता है, और हर बार रिन्यूअल का प्रॉब्लम ये सबको उसको एड्रेस करने के लिए दे कम अप विद अ गोल्डन वीज़ा। तो उन्होंने शुरुआत की कुछ सिलेक्टेड लोगों को, कुछ लोगों को जो प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में कुछ है उनको देने के। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, टर्नओवर का क्राइटेरिया निकाला कि जिन इतना क्राइटेरिया है, इतना जो उनको मीट करेंगे उनको हम गोल्डन वीज़ा देंगे। अब वो बहुत लीनियंट हो गए, अब सैलरीड को भी दे रहे हैं। अब 30,000 40,000 दिरहम की सैलरी है जिसकी, उसको भी गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। 2 मिलियन दिरहम का बिजनेस कर रहा है, सिर्फ टर्नओवर कर रहा है, उसको भी गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। तो गोल्डन वीज़ा बहुत ईजी हो गया। सो गोल्डन वीज़ा पहले जितना ना डिफिकल्ट रहा है, अप्रूवल्स भी बहुत फास्ट आते हैं, और हर कोई वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि गोल्डन वीज़ा ले ले, क्योंकि 10 साल का वीज़ा मिल गया तो आपको हैसल एक चला गया, और कॉस्ट भी बहुत कम है। 10,000 दिरहम में आपको 10 साल का वीज़ा मिल जाता है। सर जरा समय को ध्यान में रखते हुए 1-2 क्वेश्चन अगर किसी को करना हो तो कीजिए। આપણે ત્યાં જોઈએ છે કે જનરલ ટ્રેડિંગ LLC એવું નામ છે, તો જનરલ ટ્રેડિંગમાં તમે કેટલું જનરલ કરી શકે? अगेन बहुत सारा क्वेश्चन है। जनरल ट्रेडिंग दुबई में जो बिजनेस करते हैं उनको जनरल ट्रेडिंग के बारे में आइडिया होगा। तो जनरल ट्रेडिंग ऐसा है कि आप जो बिजनेस करना चाहो कर सकते हो, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है उसका, बट बहुत ही नोटोरियस लाइसेंस है। नोटोरियस मतलब बहुत ही बदनाम लाइसेंस है, क्योंकि बैंक या दूसरी अथॉरिटी उसको इस लाइसेंस को ऐसे देखती है कि यार ये तो सब करने वाला है, ये तो कुछ भी करेगा, तो ट्रस्ट नहीं बैठता है। बट यस, जनरल ट्रेडिंग में आप सब बिजनेस कर सकते हो, सिर्फ कौन से नहीं जिसके अंदर अलग से अप्रूवल लगता है। जैसे कि डायमंड का अगर आपको बिजनेस करना है तो आप जनरल ट्रेडिंग में नहीं कर सकते गोल्ड डायमंड का, क्योंकि इसको एक और अथॉरिटी जो वहाँ की सीरा पुलिस अथॉरिटी, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। उसी तरह से जैसे एविएशन है, मैरीटाइम है, वो ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें एक और अथॉरिटी का, वहाँ की मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगता है, वो सब हम बिजनेस जनरल ट्रेडिंग में नहीं कर सकते, वरना आप बाकी सारे बिजनेस कर सकते हैं। એક આ તો અમે જે અમને આઈ ઓપનિંગ આપી છે દુબઈની, અમે દુબઈ તો બધા જ જોઈને આવ્યા છે, પણ આટલું ડિટેલમાં કોઈ આજે પહેલી વખત કીધું છે પણ ખાસ ડાયવર્સિફાઈ બિઝનેસમાં સુરતીઓ બહુ છે, તમને ખબર હોય। ટેક્સટાઇલમાં પણ હોય ને બીજા રિયલ એસ્ટેટમાં બી હોય ને રેસ્ટોરન્ટ બી હવે તો સુરતીઓ જાતે બી ચલાવે છે, એટલે ને નવા નવા સ્ટાર્ટઅપ પણ સુરતમાં બહુ ચાલુ થયા છે। એમાં IT છે, ऑटोमेशन है, બધા स्टार्टअप भी चालू થાય છે, फूड प्रोसेसिंग भी बहुत मोटी इंडस्ट्री उभी રહી છે। तो एक रिक्वेस्ट एवी है कि તમે હવે આ તો અમને ખ્યાલ આવી ગયો વધારે લગભગ ઓવરઓલ બ્રોડલી, પણ બિઝનેસ સ્પેસિફિક કન્સલ્ટન્ટ જો અમને લાવો તમે, તો ફૂડ પ્રોસેસિંગ વાળાને જો દુબઈમાં કામ કરવું હોય તો એનું માર્કેટ કેટલું છે, ત્યાં શું ચાલે છે, પેકેજિંગ કેટલું છે, એ બધું થોડું અમને ડિટેલમાં કહેજો। જે રીતે ડાયમંડવાળા છે, ટેક્સટાઇલવાળા છે, ટેક્સટાઇલ બહુ મોટું કામ છે, કારણ કે સુરતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હવે સુરતનું જો મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ છે સાહેબ, તે સુરત અને ઇન્ડિયા માટે પૂરતું છે। હવે અમારે બહાર નીકળવાની જરૂર છે, અને જેથી અમે ગયા વર્ષે પ્રયાસ શરૂ કર્યો કે 2 એક્ઝિબિશન અમે ઇન્ટરનેશનલ કર્યા દુબઈ અને યુએસએમાં, અને આ વર્ષે બી અમે બાંગ્લાદેશ એક નવું ચાલુ કર્યું છે, એટલે બાંગ્લાદેશ, દુબઈ અને યુએસએ પાછું આ વર્ષે બી થશે, અને દર વર્ષે એક કન્ટ્રી અમે વધારતા જઈએ છીએ કે સુરતના લોકોને, એટલે એમાં અમને બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો ત્યાં બધી જ જગ્યા પર, દુબઈ અને યુએસએમાં પણ, અને ઢાકામાં પણ આ વખતે અમને બહુ સારો રિસ્પોન્સ છે, કારણ કે સુરતનું ફેબ્રિક તો જાય જ છે। એટલે ખાસ હવે અમારે બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટની પણ જરૂર પડશે, એટલે તમે બી ખાસ એ ધ્યાન રાખજો કે સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટ આવે તો એ અમને બહુ ફાયદો થશે। જશુક, કેન આઈ એડ સમથિંગ? સી, એક જવાબદારી અમે લઈ શકીએ, સેક્રેટરી સાહેબ અહીંયા છે એટલે હું કહી શકું એમને, આપણે જશુક જોડે બેસીને લેટ્સ પ્લાન આઉટ ફોર ધ નેક્સ્ટ 3 to 6 months। ધારો કે આપણે 4 સેક્ટર પકડી લઈએ જે સુરતમાં ખરેખર આજે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે, ટેક્સટાઇલ હોય કે ફૂડ પ્રોસેસિંગ હોય, અને એ સેક્ટર સ્પેસિફિક આપણે કન્સલ્ટન્ટ ત્યાંથી બોલાવીએ, અને જરૂરત પડે તો જશુકભાઈ પણ સાથે આવે, એ પહેલાં એક્સપ્લેન કરે કે ત્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી શું શું છે આ ધંધાની અંદર, અને જશુકભાઈ આપણને હેલ્પ કરે કે એમાં તમારે અંદર જવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે।
તો કદાચ આપણને ઇઝી પડશે. That is one thing which I just discussed with Harshal, and I think if you could do that, please. Thank you, Harshal bhai, for addressing this. So it's a very well point, and Sujay, જે પ્રશ્ન છે, it is like looking forward now. It is very good. So, as I said, one stop solution, since I said ખાલી કહેવાની વાત નથી. So, જ્યારે તમે આજે બિઝનેસ કન્સલ્ટન્સી, we are very well connected with the industry specific business consultants also there, but as Ajay bhai said, we can jointly do it as a project. Let's pick one, like as you said, ચલો આની ઉપર વર્ક કરીએ, લેટ્સ 6 મહિનાનો કે વર્ષનો પ્લાન બનાવીએ, how we leverage this, how we address this, અને કેવી રીતે લઈ જઈએ, અને દુબઈ રિલેટેડ I am there as a channel. I'll make sure that it is done. અને ખાસ તમને હું એડ કરવા માંગુ છું કે સુરતનું જ ફેબ્રિક ઝારા અને બીજી ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડમાં ગો બધાના બધી જાય જ છે. ડાયમંડ પણ સુરતના પેલી સિરીના લિયોન પણ છે, ટેનિસ પ્લેયર શૂઝમાં પહેરે છે તે સુરતના ડાયમંડ છે. એટલે આવી બધી ઘણી વસ્તુ સુરતથી એક્સપોર્ટ થાય છે. એટલે સુરતનું માર્કેટ એટલે ક્વોલિટી કોન્શિયસ સુરત છે જ અને ડિલિવર કરતું થઈ ગયું છે. આજે ઇન્ડિગો એરલાઇનમાં જે ફૂડ પેકેટ જાય છે તે આપણા સુરતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી જાય છે. જ્યુસ તમને જોવા મળે છે, એર ઇન્ડિયામાં જોવા મળે છે, બિસ્કિટ્સ પણ બધા અહીંયાથી જ જાય છે. એટલે સુરતને એક બહુ મોટું મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ અને ક્વોલિટી કોન્શિયસ થઈ ગયું છે. જે કદાચ 20 વર્ષ પહેલાં ભટ્ટાચાર્ય સાહેબે કીધું એવું હતું કે 1 ના 3 થતા લોકો બહાર નીકળતા જ નહીં હતા, એ પોતાની ઓફિસમાં બેસીને. પણ હવે નવું જનરેશન જે આવ્યું છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, તે ચલાવે છે અત્યારે ચેર પર બેસીને, તે ખરેખર ક્વોલિટી કોન્શિયસ છે અને બધા જ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો બી કરે છે. સુરતનું તમે કદાચ આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ પૂછો તો હાઈએસ્ટ ઇન્કમ સુરત કાયમ દર વર્ષે આપે છે. તો એટલો આ બધો પ્રયાસ એ જ છે કે સુરત ઇઝ ગોઈંગ મૂવિંગ ફોરવર્ડ. એટલે અમને સારા પ્લેટફોર્મિંગ અને સારા ગાઈડન્સની જરૂર છે. જો એ મળે, અમને રેગ્યુલર મળતું રહે, તો સુરતનું ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે ડેફિનેટલી બહાર જવા તૈયાર જ છે. વેરી ગુડ. એટલે મોદીજી, એક વસ્તુ હું એડ કરવા માંગુ છું. હર્ષલભાઈ જે વાત કરી, તો અહીંયા જેટલા જણ ઉપસ્થિત છે એમને જો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય અથવા તો તમારે સેટઅપ માટે તમારી શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, તમને કયા ટાઈપના ડેટા જોઈએ છે, તો એનો તમે એક મેઇલ અથવા તો તમે યોર લેટર પેડ તમે ચેમ્બર પર આપજો, સબ્જેક્ટ ટુ ધીસ કંપની ફોર્મેશન ઇન દુબઈ, તો એને આપણે એડ્રેસ કરી શકીએ. રાઈટ? ઓકે, થેન્ક યુ. એક મારી જસુભાઈને ને ચેમ્બરને એક રિક્વેસ્ટ છે કે આવો કોઈ દુબઈમાં બિઝનેસ, સમજી લો કે બિઝનેસને કોઈ એન્હાન્સ કરવા માટે કે એવો કોઈ ટ્રીપ કે એવી કોઈ ટૂર ગોઠવે કે જેથી કરીને ભાઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ વ્યક્તિ ત્યાં આવે ને ત્યાં વિઝિટ કરશે. બેઠા બેઠા તમે કહેશો તો કોઈ પણ બધાને બધું સારું જ લાગશે. ત્યાં આવીને જોશે, સર્વે કરશે, ભલે ને એક નો ફીસ, આપણે ફીસ પેડ કરીને જવું છે. જેને રિયલી કંઈ હશે, જેને બિઝનેસ કરવાની, એ જશે ને ત્યાં જઈને એક્સપાન્શન કરશે ને સર્વે કરશે. તો એવું કંઈક ગોઠવો કે જેથી કરીને અહીંયાથી બધા આવવા માટે રેડી છે. ચેમ્બર, આઈ મીન ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોઈન્ટ. હા, હી હેઝ રેઝ, એ બહુ સારો પોઈન્ટ રેઝ કર્યો છે. તો ત્યાંની બધી અરેન્જમેન્ટ મારી જવાબદારી, આઈ ટેક કેર ઓફ ધેટ, બટ ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, યુ શુડ ટેક કેર ઓફ. હા, એટલે ચોક્કસથી અમે જે ગયા વર્ષે પણ પ્રયાસ કર્યો હતો ટેક્સટાઇલ માટે કર્યો હતો, પણ તમે જે ધ્યાન દોર્યું છે એ પ્રમાણે અમારી તૈયારી એવી છે જ. અહીંયા સેક્રેટરી શ્રી બી બેઠા જ છે, એટલે ચેમ્બરની પૂરી તૈયારી છે એક બિઝનેસ ડેલિગેશન મલ્ટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે લઈ જઈએ. અને સ્પેસિફિક હોય એટલે તમે ત્યાં જાઓ ત્યારે તમને સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વિઝિટ કરવા માટે માર્કેટિંગની અને કન્સલ્ટન્ટની પણ જો મિટિંગ ત્યાં થઈ શકે તો જસુભાઈ આપણી માટે હેલ્પ કરવા તૈયાર જ છે. તો એની માટે આપણે બિઝનેસ ડેલિગેશન લઈ જવા તૈયાર. અને એમાં આપણે એવું પણ રાખી શકીએ કે ઘણા લોકોનું એવું વિઝન હોય કે ભાઈ ત્યાં જે અમને પૂછો કે ભાઈ ત્યાં કયો બિઝનેસ કરી શકાય. સપોઝ અહીંયા ટેક્સટાઇલમાં કરે છે પણ ત્યાં એને કંઈક અલગ પણ કરવું હોય તો એ પણ તમે ગાઈડ કરી શકો. એવી ઇન્ડસ્ટ્રીને આપણે વિઝિટ કરી શકીએ, ગોઠવીએ આપણે ચોક્કસ. ભાવેશભાઈ, મારી એક રિક્વેસ્ટ છે ભાવેશભાઈ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ગ્રે હેર ટોકિંગ. આજે આટલા વર્ષોથી જે જોયા છે મેં, ઘણી વાર એવું મિટિંગમાં ઘણી વાતો થાય છે અને પછી અહીંયા જ પૂરી થઈ જાય છે. એની જગ્યાએ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે બધાના આપના જે કોન્ટેક્ટ્સ છે, આપના ઈમેલ આઈડી અને કોન્ટેક્ટ્સ હોય એ પ્લીઝ આપ આપજો જતા પહેલાં. વોટ વી વિલ ડુ ઇઝ એક ગ્રુપ બનાવી લઈશું એમાંથી, અને હું જશુકને સપોર્ટ કરીશ, હેલ્પ કરીશ. હા જશુક, તમને એક પ્લીઝ, આજે જે આ ચર્ચા થઈ છે, હર્ષલે જે એક ઇનિશિયેટિવની વાત કરી છે કે જુદા જુદા સેક્ટરના આપણે અહીંયા એક આવી રીતે મિટિંગ ગોઠવીએ, that will be your responsibility, Jashuk, because you take the initiative. Tuhin is there, but you take the and I would request Bhavesh bhai to make sure कि ચેમ્બર ધારો કે આ દરેક 2 મહિનામાં એક મીટિંગ કરે એક સેક્ટરનું, અને ત્યાં 2 એક્સપર્ટ્સ આવે, એક સેક્ટર સ્પેસિફિક આવે અને એક બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ જે વાતો છે એના માટે. And then I think the results will come. So let us not finish it here today. कि આજની મીટિંગ હા અહીંયા પૂરી નહીં થઈ જાય, એને આગળ લઈ જવા માટે મારી ફરીથી આપને બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ આપના કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ બધા આપજો.
We will make a group and make sure that you are supported. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने इतनी नॉलेज दे दी तो कईयों के मन में तो ऐसा ही होगा कि बस मीटिंग खत्म हुए और हम जयसुख शाह के साथ बैठ के और कंपनी फॉर्मेशन की तैयारी करें। बहुत सुपर, इन्होंने हम लोगों को गाइड किया है और आगे भी ये हमें गाइड करते रहेंगे। और हमारे जो सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्म और धर्म यही है कि व्यापार और इंडस्ट्री को बुलंदियों तक पहुंचाना और उसमें आने वाली सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, कई जने पूछ रहे हैं कि भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप कैसे मिलती है, तो एक लाइन में मैं आपको कह दूं कि हमारा स्टाफ विरल गज्जर करके बाहर हैं। किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो कृपया आप उनसे पूछ लीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ट्रेजरर श्री से कि आप वोट ऑफ थैंक्स करें। श्री भावेश गढ़िया जी। थैंक यू मकानी जी। लैंड ऑफ फॉर्चून से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की ओर उड़ने वाले या उड़ने की खेवना रखने वाले आप पधारे सभी उद्योग साहसिकों को मेरा नमस्कार। और आपका मैं इसीलिए धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि वंदना जी, एक वक्त था जब सूरत के अंदर कहा जाता था कि 84 बंदर के फ्लैग लगते थे, और आज हम सब वो दिशा में है कि यहाँ से हम 84 से ज़्यादा कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए एक डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। तो आप सब यहाँ पधारे और इतने इंटरेस्टिंग सेशन के साथ में आपने इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन आपने अर्ज की, उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आप सभी वंडरफुल ऑडियंस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। खास तो मुझे जैसे हमारे सबके मोटिवेटर और सबके इंस्पिरेटिव डॉक्टर अजय जी ऑलवेज है, और उसने इन न्यू जनरेशन और न्यू जनरेशन के दोनों ही डायमंड्स तुहिन भट्टाचार्य और जसुख शाह जी हमारे बीच में लाके रखे, और उन्होंने इतनी बेसिक और इतनी विस्तृत छनावट से हमारे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन का निराकरण किया। तो ऐसे दोनों वक्ता के लिए हम एक बार जोरदार तालियों से आप सबकी ओर और हम चैम्बर की ओर से हम आपका हृदय से शुक्रगुजार है, क्योंकि आपने आज जो इन्फॉर्मेशन की वो एक नया अध्याय शुरू करने के लिए बहुत जरूरी था। आप दोनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आभारी हूं। डॉक्टर अजय जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया, ये रियली इट इज ए मार्वेलस स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल एंड और अब्रॉड बिजनेस फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर ऑफ द सिटी। सो रियली आपका तो आपका चैम्बर है, लेकिन फिर भी एज ए ऑफिस बेरर मैं आपका हृदय से आभारी हूं और चैम्बर के प्रेसिडेंट के ओर से आपका खूब शुक्रगुजार हूं। देवकिशन मकानी जी ने इतनी साहसिकता से पूरी मीटिंग कंडक्ट की। मकानी जी, मैं आपका भी हृदय से आभारी हूं, और आपको अभी ही कमिटमेंट दिया है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेशन के चेयरमैन और कॉन्सुलेट लाइजन कमेटी के चेयरमैन श्री हर्षल भाई भगत। हर्षल भाई भगत, मैं आपका भी चैम्बर की ओर से खूब आभारी हूं, खूब शुक्रिया आपको अदा करता हूं, और आप सभी को आप दुबई की सैर जरूर कराएं, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। तो आपका भी खूब खूब धन्यवाद। हमारे चैम्बर की टीम जो बाहर है, यहाँ पे है मीडिया, राहुल जी है और जो भी है, सबका मैं आभारी हूँ इतना वंडरफुल कार्यक्रम कंडक्ट करने के लिए। और फिर से एक बार वंडरफुल प्रोग्राम, वंडरफुल स्पीकर और वंडरफुल ऑडियंस, ये तीनों को मिला के जो त्रिवेणी संगम यहाँ हुआ है नवरात्रि के लास्ट दिन पे, तो इसके लिए आप सबका फिर से आभारी हूँ। और अब हर हमेशा से इस चैम्बर के साथ जुड़िए और कुछ ना कुछ नया डेवलप की और दिशा में आप अपना इनिशिएटिव ले, जो चैम्बर का विजन है, और आपका विजन भी यही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।